what is health and what is healing? And most importantly, why is it so elusive? Why is it such a such a big topic that we've not been able to, I think, master? कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है। बॉडी है, अलाइव है, कुछ तो उसमें साइन सिम्टम। जो डेफिनेशन हेल्थ की है कि रोज का ताजा समाचार क्या है, एंड आई लीड माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट। अगेन द ग्रैटिट्यूड टू दैट। तो आई begin my day with wellness Hmm. of gratitude, right? But Evolved so much that we are ready to go to Mars and set up colonies there, but our own bodies, our own health, what works, what doesn't work, we are all still so lost about it. ऐसा क्यों है? वेट ट्रेनिंग कर, वो बॉडी को जब मजा आ रहा है ना, Hmm. मीन्स द राइट मेडिसिन अंदर पड़ रही है। Hmm. Hello, CJ. Good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग। Welcome once again to our next episode of Growing Deeper Together. How are you liking this series that we've been doing? You've been doing it with so many different interviewers, so you're the constant so far. And I know there are plans to take it bigger and get other people involved, but so far we've all been interviewing you. How are you liking this? Uh, you know, uh, Different hosts asking you questions in a different manner. So we are growing deeper is all I know, and we are growing. Yeah. Growing is all I know. And Yes. together, that is most And important. together, of Yeah. course, that is the primary thing, Correct. together. Yeah. So it's been so wonderful. And I was thinking today morning, this Saturday morning of our recording has become like this mini date that I get excited about. And then no office, but I have to get ready and do this. So I'm very excited to talk to you again. Instead of looking at wisdom from the lens of the trees and the bees and the plants, I thought let's talk about us. Take a little detour and talk about us. And this is a takeoff from your last discussion with Vishakha, which was on fitness. I'd like to delve on health. So I want to start with something very basic, but maybe it needs your wise eye. What is health and what is healing? And most importantly, why is it so elusive? Why is it such a such a big topic that we've not been able to, I think, master? Yeah. So you see, when I first time tuned into the definition of health, अब उससे पहले तो क्या है कि चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, हेल्दी हैं। तो बीमार पड़ गए तो मतलब लेट गए, लेटे नहीं हुए तो हेल्दी है। पहले ऐसा थॉट था। देन व्हेन आई एक्चुअली गॉट इनटू द मेडिकल प्रोफेशन, तो द WHO definition, you know, so it is like the absence of In any symptoms, is you health. know, that is health. But वो सब एकेडेमिया था, रट्टा मार के लिख दिया। बट अब जो मुझे हेल्थ समझ आ रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है। बॉडी है, अलाइव है, कुछ तो उसमें साइन सिम्टम ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज या एनीथिंग इंटरनल इश्यूज एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, कोई तो सिम्टम आएगा ही। कोई ऐसे फ्लॉलेस पोर्सलिन डॉल नहीं है, यू नो। तो मोमेंट भी से कि कोई सिम्टम, एब्सेंस ऑफ सिम्टम, तो दैट मीन्स जैसे सिम्टम आया अब मैं बीमार हूँ, हेल्दी नहीं हूँ अब मैं। तो अब ये जो हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस का नया चीज शुरू किया है, इट इज लाइक कि आप एनुअली गो एंड गेट ऑल द टेस्ट डन। अब सारे टेस्ट जब आप कराएंगे तो कहीं ना कहीं रीडिंग ऊपर नीचे होगी फॉर वेरियस रीजंस। सो दे से कि यू गो फॉर दिस हेल्थ चेकअप एज अ वेल पर्सन एंड यू कम बैक अ पेशेंट। और जो डेफिनेशन ऑफ पेशेंट भी है ना,
कि आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ता है टू ऑनर योर हेल्थ, टू फुल्ली एक्सेप्ट कि ये बॉडी है, ये माइंड है, इसमें कुछ ना कुछ होता रहेगा, लाइक द ओशन, लाइक द रिवर, लाइक द वेदर, एंड आई हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू दैट. सो दिनचर्या एंड ऋतुचर्या. तो मेरी जो डेफिनेशन हेल्थ की है कि रोज का ताजा समाचार क्या है, एंड आई लीड माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट. परफेक्ट, सो ब्यूटीफुल, बट एट द सेम टाइम देन हीलिंग किसको करेंगे? या अब हील किसको करें? अब जब हेल्थ की बात करेंगे तो हील की बात करेंगे. अब जो भी सिम्टम आ रहा है आज के ताजा समाचार में, कुछ तो आ रहा है ना, बॉडी कुछ कह रही है. स्टार्टिंग फ्रॉम कि रात को नींद पूरी हुई कि नहीं. सुबह जब उठते हैं, फर्स्ट थिंग लाइक टुडे माय बॉडी वाज लाइक वाओ आई स्लेप्ट सो वेल. रात को उठे नहीं सुसु के लिए. How beautiful, then I feel that gratitude for my uber comfortable bed, and I always put a machardani, and I feel so safe in that cocoon, from any flying insects or anything. So again, the gratitude to that. So I begin my day with wellness Hmm. of gratitude, right? But अब मैं उठ गई हूँ, so I follow the practice of कि first thing is I go out into my balcony to welcome the day, to kind of tune into the early morning pre-dawn light. उसमें भी इतना gratitude आता है, बट आज एक मच्छर ने काट लिया. बाहर निकली बिल्कुल टाइनी सा समथिंग, और उसने काट लिया. तो अब क्या है कि is my health disturbed? Is my well-being disturbed? In a way, yes. इतने मजे में उठ रहे थे, हाय हाय हाय, ग्रेटिट्यूड में चल रहे थे, ओ हो. मच्छर कहाँ से आ गया? एंड नॉट जस्ट दैट, बिकॉज मच्छर आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना काटे ना. हम्म. अब काट लिया तो वहां पे जो इच शुरू हो गई, एंड यू वांट टू रिस्ट्रेन विद योर विल पावर कि मैं इसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से करूंगी, ऐसे इच नहीं करूंगी, बट टाक टाक टाक. वो तो लकीली मेरे नेल्स छोटे हैं. यू नो या. तो अब क्या हुआ? तो उसमें कुछ तो एक आई ना, हेल्थ कुछ हिली, वेलबींग थोड़ी सी हिली. हम्म. सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज ओके व्हाट डू आई डू विद दैट. तो मेरा तो ये एक रामबाण है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली. तो थोड़ा सा लेके उसके ऊपर लगाया तो इच खत्म हुई, आई एम बैक टू माई वेलबींग. या. सो हीलिंग हो गई, राइट. उसके बाद मैं मच्छर को भूल गई, अभी आपसे बात हुई है तो मच्छर याद आया. तो ऐसे ही इलनेस भी है. हम होम्योपैथी में कहते हैं कि आप भूल जाते हो कि इलनेस हुई थी. दैट इज हीलिंग, कोई ब्यूटिफुल. याद दिलाता है आपको. या. या. तो या. नॉट staying with the story, because every day is a new story. Body की भी रोज एक new Yes, story है. So I absolutely. think we're retelling the story to ourselves. For me personally, maybe I wake up with this fear that, okay, will I have a decent day or will there be migraine? So I'm Yeah. retelling my body that story. Maybe the body's already forgotten or wants to forget. But my mind Yes. is telling it, and then obviously the body kind of lives with it parallelly, and कुछ भी trigger हुआ तो it. So I think not assuming that it's a new day, even for the body. Every day is a fresh start for the body. और पता है क्या है, सबकी स्टोरीज होती हैं, ऐसे नहीं कि मेरी नहीं है. अब मेरी मच्छर स्टोरी है, तुम तो कब से जानती हो मेरी मच्छर स्टोरी है, तुम्हारी माइग्रेन स्टोरी है, राइट. Yeah. अब हम अपनी अपनी स्टोरी में जीते हैं. अब हालांकि मेरे यहाँ पे आई हैव दिस जाली वाले मेरे दरवाजे हैं, मैं रात को खोल के आई आई लाइक टू हैव ओपन एयर, एंड देर इज अ वायर मैश, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. Hmm. बट मैं फिर भी मच्छरदानी लगाती हूँ, बिकॉज सम वेरी टाइनी थिंग समथिंग, अभी बिकॉज इट्स रेनी सीजन नाउ, समथिंग जस्ट enters, maybe a fly. So I still kind of take that precaution, and I feel so happy about it. But बच सकती हूँ क्या मैं? बालकनी में निकले, लो जी,
सो सेम इज, हम में से कोई भी बच सकता है क्या फ्रॉम वट एवर इज देयर अराउंड अस एंड वट एवर इज देयर विद इन अस? और क्योंकि मेरी मच्छर की ही स्टोरी है, वो तो रिपीट होती ओ है किसी ना किसी फॉर्म में। रिपीट होती है, राइट? वो वो होती है जब तक आई डोंट नो, आई विल ट्रांसेंड दैट और मच्छर विल स्टॉप बाइटिंग मी, गॉड नोज हाउ इट विल हैपन, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई बंदे नहीं है ट्रिगर करने वाले, तो फिर मच्छर आ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो ट्रिगर चाहिए कुछ ना कुछ लाइफ को। रहेगा। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। Absolutely wonderful. लेकिन I also wanted, I was thinking about this earlier before we started recording. There is so much confusion, at least today. 10 years ago, ghee was the enemy. Today, ghee is good fat. Earlier, dalda में पहले खाते थे. Then refined came. Now suddenly everybody is obsessed with olive and avocado oil. प्रोटीन खा लो ज्यादा. पहले था नहीं नहीं अच्छा, रोटी इज ओके नॉट. आई एम सेइंग every few years there's a new thing that comes and makes us all obsessed. Right now it's all about protein and strength training. Maybe 2 decades back it was all about yoga. Why are we still chasing something? Why have no, well, we've evolved so much that we're ready to go to Mars and set up colonies there, but our own bodies, our own health, what works, what doesn't work, we're all still so lost about it. ऐसा क्यों है? Yeah. So there are two systems that I have studied, homeopathy and Ayurveda, where we talk about the constitution और द प्रकृति, फिर प्रकृति की विकृति, और किसमें क्या देना है। अभी कल ही हमने एक क्लास कर रहे थे हम बॉडी टाइप पे, राइट? तो बॉडी टाइप क्या है कि एक तो देर आर नो वन शू फिट्स ऑल सॉल्यूशंस। सबसे पहला तो ये जिस दिन हमने समझ लिया ना, फिर ये है कि भी पहले मैं सोचूंगी कि प्रोटीन मेरे लिए है क्या, घी मेरे लिए है क्या, मसल ट्रेनिंग मेरे लिए है क्या। तो पहले मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यस्टरडे आई वाज सेइंग जैसे एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके हिसाब से उस कंट्री के रूल्स लॉज सब बनते हैं, और जो तोड़ता है उसको पनिशमेंट मिलती है। ऐसे ही हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी बॉडी का, और सबका अलग है, लाइक हर कंट्री का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। दे मे बी सम बेसिक थिंग्स विच आर सिमिलर इन एवरी कंट्री, बट कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और जिसके हिसाब से चलते हैं वो, है ना। कहीं पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कहीं पे राइट हैंड ड्राइव है। तो अब क्या है कि हमारा भी बेसिक सर्टेन थिंग्स आर सेम, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हर बंदे का अलग है, उसके रूल्स एंड लॉज को अगर आप तोड़ोगे तो आपको सजा मिलेगी। ओके, नाउ कम्स कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझना ही इतना जरूरी है। मेरा बॉडी फ्रेम कैसा है, मेरा वेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, जल्दी पुट ऑन करती हूँ या जल्दी लूज करती हूँ, या पुट ऑन ही नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी खाऊं या मैं हवा भी खाऊं तो पुट ऑन करती रहती हूँ, राइट? देर आर सो मेनी थिंग्स एंड देर आर क्वेश्चन इज इन आयुर्वेदा फॉर दैट, इन इवन homeopathy are different kind of constitutional questions, but ayurveda I really like because थोड़ा और सिंपलर है वो। एंड सो अब क्या है कि अगर मेरा वाता कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लो मेरे अंदर एयर जाता है और आपका वाता है, आप दिख रहे हो मुझको कि योर स्लिम गर्ल, मेरा भी वाता है। तो अब वाता कॉन्स्टिट्यूशन वालों के लिए घी बहुत जरूरी है, इंटरनल ओलिएशन एंड आउटर ओलिएशन, हम्म. दोनों जरूरी है, राइट? क्योंकि ड्राइनेस होती है, हवा बढ़ जाती है, ड्राई करती है, अंदर भी ड्राई करती है, कॉन्स्टिपेशन दे देती है, एंड स्किन को भी ड्राई करती है, बालों को ड्राई करती है, चीजें टूटते हैं, नेल्स ब्रिटल होते हैं, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम हो जाती है, जॉइंट की पेन होती है। तो अब मेरे लिए घी जरूरी है, पर जिसका कफा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें अर्थ एंड वाटर ऑलरेडी भरा हुआ है, अब उसको नहीं चाहिए घी। Hmm. So अब true. घी किसको चाहिए? नाउ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेम इज नाउ विथ प्रोटीन। पित्ता है और मैं वाता पित्ता हूँ, आई थिंक आप भी वाता पित्ता हैं। तो उसमें क्या है कि अब पित्ता इज अबाउट मसल्स, उसकी मसल्स होती हैं, उसका पित्ता का फंक्शन इज इन विद डाइजेशन, राइट? फायर है ना, Fine. डाइजेस्टिव फायर, राइट? तो डाइजेस्टिव फायर भी है, एंड इवन ओजस तेजस भी उससे ही आते हैं, फायर से, राइट? तो अब क्या है कि उसको मसल चाहिए, एक्शन भी लेता है, पैशन होती है,
है ना, इनिशिएटिव लेता है, तो अब उसको मस्कुलर पावर चाहिए, हॉर्स पावर। अब उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। हम्म। उसके लिए एक्सरसाइज ऑफ दैट की मसल्स ट्रेनिंग उसके लिए जरूरी है, लिटिल वेट लिफ्टिंग, लिटिल, जैसे मैं हैंग करती हूँ या स्क्वाट्स करती हूँ या वॉल पुशअप करती हूँ, उसके लिए जरूरी है कि उसकी मसल स्ट्रांग रहे, क्योंकि उसकी वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो प्रोटीन का ध्यान दे। माता वाले को जरूरत नहीं है। माता वाला अपना घी खाए, एवोकाडो खाए, तो सबसे पहले तो तो समझे कि हम हैं क्या, एंड हाँ नॉट बस, नॉट ट्राई एंड फिट इनटू अ मोल्ड, नॉट एब्सोल्यूट, ट्राई एंड मैच आवरसेल्व्स टू एनी मोल्ड, कि अब प्रोटीन इज की द लहर थिंग चल के ना। तो सारी शुरू हो जाए। हाँ, कि सबको करना है, हम्म। यू नो सेम विद एक्सरसाइज ऑल्सो, कि सबको ही करना है, और कौन सा एक्सरसाइज करना है। सबकी अलग कहानी है। जो काफा वाला है उसको ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करनी है, एंड क्योंकि मोस्ट उसकी, इम्पोर्टेंटली, what is it that I enjoy doing in form of exercise? I may enjoy yoga the most, but अभी नहीं आपको करना है, नहीं आप जिम ही जाओ. So when we are trying to also go जबरदस्ती out of our comfort zone too much, I feel that also is because अंदर से तो अच्छा लग नहीं रहा है, जिम में खड़े हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, and I did that to myself. You're forcing yourself to go every day, you're forcing yourself to match up to a standard. But really, the real joy when I feel when I'm on a mat is very different. So the I need to also understand what is giving my body joy, even in form of exercise. तो ये इशनीत आपने बिल्कुल जिसे कहेंगे ना फंडामेंटल ट्रूथ को टच कर लिया। हम्म। कि एक आपकी बॉडी है, आप माइंड से देख रहे हो कि मेरी बॉडी, अच्छा मेरा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा क्या कहानी है, ये तो देख रहे हो ना आप, हम्म। ऑब्जर्व कर अपने आप को। एक है कि बॉडी खुद ही आपको बता रही है कि मुझे क्या चाहिए। हम्म। आप माइंड से, आपको चाहे वाता पित्ता आपको कुछ पता नहीं है मान लो, बट जो आपकी बॉडी है वो आपको अंदर से बता रही है कि तू ताई ची कर, तू वॉक के लिए जा, हम्म। तू हवा ले, तू हल्के हल्के झूले ले, या तू जिम में जा, या तू रनिंग कर, या तू वेट ट्रेनिंग कर। वो बॉडी को जब मजा आ रहा है ना, हम्म। मीन्स द राइट मेडिसिन अंदर पड़ रही है। हम्म। ट्रू। तो ये दोनों चीजें आपने आपने अपने माइंड को भी यूज किया टू अंडरस्टैंड, बिकॉज माइंड का फूड क्या है? अंडरस्टैंडिंग, विजडम, नॉलेज। वो माइंड का फूड है। एंड हमारे पास माइंड है तो माइंड को भी हमें फीड करना होता है। वी कांट से कि माइंड को इग्नोर कर दो, नो, उसको भी फीड करो। बट देन बॉडी का फूड क्या है? मजा। सोल का फूड है वो फ्रीडम, फ्रीडम टू डू, कि मुझे किस में मजा आ रहा है। जॉय। एंड दैट इज जस्ट द राइट थिंग फॉर यू। या। कोई और बताएगा मुझको, कि मेरी बॉडी को क्या करना चाहिए? वो मेरी बॉडी बताएगी। तो कैसे सुने अपनी बॉडी की इन today's day and age when there is so much around us which is constantly telling us uh, two things are happening. One, we are passing on this, it's almost like a tool, कि क्या हमें चाहिए, क्या हमें करना है, क्या हमारे लिए सही है, we're giving it up and taking it externally. एंड सेकंड, द नॉइज, इतना एक्सटर्नल नॉइज है ना, आई मीन सोशल मीडिया में इतने हैं, रील्स भरी पड़ी हैं, शॉर्ट्स ऑन एवरीथिंग, दैट देयर इज, आई फील स्पेशली इन माय जनरेशन, आई फील a lot of us are getting disconnected from our bodies. You have a routine to match, you have office to do, you have houses to manage. How do we practically uh, look at this concept of listening to our body in not for somebody who has all the time at their disposal, but somebody like me who has 14 hours dedicated to chores. So how do I carve it practically? How do I या listen? या तो क्या है कि आप करते हो लिसन। आपको पता है कब आपको ठंड लगती है, आपको पता है कब आपको हेडेक होती है, आपको पता है कब की अभी स्वेटिंग हो रही है, आपको वट एवर यूर फीलिंग, वट एवर आपकी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, आपको पता है। आपको पता है कि आज मेरी नींद पूरी हुई कि नहीं, आपको पता है कि आज पॉटी कैसी थी, आपको पता है कि मेरा यूरिन डार्क हो गया है अभी। यही तो बॉडी बोल रही है आपको कि अब पानी पी लो, अब मूव कर लो, अब रेस्ट कर लो।
राइट? जैसे छोटा बच्चा होता है, ट्यून्ड इन होता है अपनी बॉडी में। अब आप जो कह रहे हो कि आपके पास एबीसी बहुत काम है, एक टू डू लिस्ट है। अब वो टू डू लिस्ट में मान लो लग भी रहा है कि थोड़ा रेस्ट करो, तो बोले नहीं नहीं भैया मैं नहीं रेस्ट कर सकती, मेरा तो ये बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग सेइंग इज कि यू आर नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी। इट डजेंट मीन कि आपने सुना नहीं है, आपने सुना है, बट आपने अनसुना कर दिया है। Hmm. सुन तो सब रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं सुन रहा है, पर वो अनसुना कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, हम कह रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट बताएगा कि अब मुझे क्या करना है, बाकी क्या कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जो आपने एडिंग ऑफ नॉइज की बात की, तो हम भी नॉइज ऐड कर रहे हैं उस सेम नॉइज में, बट हमारा जो एक थोड़ा सा एक जो चीज है, एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर्स लाइक अस ऑल्सो, कि हम हर चीज को अपने ऊपर ले आते हैं। हम एक कोई टेम्पलेट, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हम Correct. कह रहे हैं भाई मेरे ऊपर मैंने क्या सीखा है, मेरा क्या लिव्ड विजडम है, मेरे ऊपर क्या काम आ रहा है, और या मेरा क्या इशू है। राइट? तो बाकी जनता जो बता रही है कि अभी ये प्रोटीन खाओ, अभी ये खाओ, वो एक टेम्पलेट बता रहे हैं। वो कह रही है कि भाई तुम जो भी हो, जो भी बंदा सुन रहा है, बुढ़ा है, जो बच्चा है, जवान है, मोटा है, पतला है, रोगी है, योगी है, तुम ये खाओ। मतलब ऐसे तो नहीं होता ना। Hmm. तो ये प्रॉब्लम ये है कि यू लिसन, सुनो सबकी, करो मन की। True. सुन लो, बट मेरे को क्या सूट कर रहा है, मैं तो सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, सुन के करती हूँ, बट थोड़े दिन के लिए मैं अपने आप को टाइम देती हूँ कि हाँ, एंड देन आई चेक कि मेरा क्या फर्क पड़ा इससे। और जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो दैट्स ओके, क्रॉस, ये मेरे लिए नहीं है। Wonderful. Yeah. Experiment with your या on it practically with yourself and see. या Not just try and fit into. Beautiful. या But CJ, how about kids? Because जब हम पैदा होते हैं, we are in sync with our bodies, we are connected. There is no way we don't listen to our body because बच्चों को तो innately पता है. लेकिन by the time we are 8, 9, 10, I'm seeing it with my son. You externally have to be told. Yeah, you are getting told ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है. I'm also struggling with this. How do I equip him? And of course, for our audience watching, how do they equip their younger kids to form this equation with their body, where they know how to listen to the body and make I don't know. There is the larger question of, because if you just leave it completely to them, the junk takes over, the everything else takes over. So how do we build how do we give them the tools to build this equation where they know that innately body को पता है and इसके साथ ही grow करना है. तो I want you to shed some light on that. या सो इशनीत, आपका बेटा अभी 8 years old है। Hmm. 8 years, और 8 years से पहले 9 months इन योर वूम। जब वो आपकी वूम में था, तब आप अपनी नॉलेज से या अपनी बॉडी के विजडम से कुछ खा रहे थे, फूड खा रहे थे, थॉट्स ले रहे थे, इमोशंस आ रही थी, ऑल दैट दैट चाइल्ड हैज इम्बाइब, नंबर वन। नंबर टू, जब बेबी छोटा था, तब आप जब मिल्क भी ले रहा था, वो मिल्क में आप ही दे रहे थे उसको न्यूट्रिशन जो भी आपको लग रहा था सही है। नंबर वन तो है, क्या आप 100% सही खा रहे थे? Not at all. है ना? फिर दूसरा ये है कि जब वो बच्चा, यू नो हम उसको कि दूध पीना जरूरी है, या एक ग्राही और खा लो, बच्चा उल्टी कर देता है, वो नहीं खा सकता है। बट हम कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, मेरा बच्चा तो पी नहीं रहा है, मेरा बच्चा तो ये नहीं। देन वी एक्सचेंज नोट्स विद अदर बच्चाज, एंड वी लिसन टू ऑल दिस, एंड मैंने तो खुद ही लिखा एक पेरेंटिंग के ऊपर बुक, देन वी रीड दोज बुक्स, एंड देन हमारे जो गाइडलाइंस होते हैं उनको हम गॉस्पेल ट्रूथ सोच लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से बच्चे को फिट करते हैं। तब तो बच्चा कुछ नहीं कर रहा था, तब तो आप ही कर रहे थे, आप ही उसको बॉक्स में फिट कर रहे थे, आप ही देख रहे थे पड़ोसन क्या कर रही है, क्या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी वो सब उसको वो किया है फीड, कि Absolutely. बाकियों को देखो, उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, उनको देखो अच्छा खेल रहे हैं, उनको देखो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको देखो।
और तू देखने लग गया तो हम कह रहे हैं सबको मत देखो, अपने को देखो। मतलब प्रॉब्लम हमारी है। शुरू से अगर हम कहते तेरे को दूध पसंद नहीं है, फॉरगेट इट, मत पी। कोई पीता है तो पीने दो, तू छोड़ ना, तू कुछ और खा जो तुझे पसंद है। अगर फिर हम when we go शुरू से back ऐसा कह। to the doctor, he also goes, मतलब आप पीडियाट्रिशियन एक रखते हैं जिनके पास आप जाते हैं, वो भी ऑब्वियसली एक टेम्पलेट सा दे देते हैं, ये अंडरवेट है, और दे विल पुट सम काइंड ऑफ लेबल, इसकी तो आईज हमें वीक लग रही हैं, ये खिलाइए, ये करिए, वो करिए। I am of course सो taking full responsibility, but also saying the system also is kind of rigged against this concept of listening to yourself. या इट इज, बट वो सिस्टम को अप्रोच तो हम ही कर रहे हैं ना। सिस्टम आपके पास नहीं आ रहा है, पीडियाट्रिशियन आपके घर में नहीं आ रहा है। आप जा रहे हो ये सोच के कि या तो वो बताएंगे मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, या फिर मुझे खुद ही लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज सॉल्व इट। तो आप True. पीडियाट्रिशियन के पास आ जा रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, वो कुछ तो आपको बताएगा ना, और वो वही बताएगा जो वो जानता है। सो वी कांट ब्लेम देम ऑल्सो। उसकी जो नॉलेज हुई है, उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, उसे जो समझ आ रहा है, उसने जो एक टेम्पलेट रटा हुआ है, वो बता रहा है। तो अब क्या है कि वी हैव टू फाइंड दैट मिडिल ग्राउंड, लाइक आई सेड, सुन लिया आपने उसकी, बट आपको ये भी देखना है कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है। दोनों की सुननी है ना हमको। और फिर मेरे अपने फियर्स क्या कह रहे हैं, अपने को भी देखना है कि मेरे अंदर इतने फियर्स कहाँ से आ गए, True. है ना। तो इट इज अ, जो आपने बोला ना एक कि पॉसिटी ऑफ टाइम जो है ना हमारी, दैट मेक्स अस टेक दिस शॉर्टकट्स, टेक दिस कि हाँ ठीक है, अच्छा चलो हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। Hmm. जिसके पास टाइम है ना वही राजा है। Beautiful. So true. तो टाइम एक्चुअली हमको देना पड़ता है अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को। तो ऐसे नहीं कि हाँ तू जो मर्जी कर, ऐसा भी नहीं है। बट विद दैट ऑब्जर्विंग कि इसको क्या चाहिए। एक प्लांट भी लेते हो ना आप ऑब्जर्व करके पानी देते हो। आप ऐसे नहीं आज सुबह शाम पानी डाल दो। चाहे आप डाल रहे हो शुरू में तो फिर आपको पता चल जाता है वो प्लांट ग्रो नहीं करता ठीक से, या उसकी ये नहीं है। वाटर लॉस हो जाती है, ड्राई हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे आपको समझ आती है कि इसको कितना पानी चाहिए, फिर किस मौसम में कितना चाहिए। अब बाहर बारिश हो रही है तो आप पानी उतना नहीं दोगे जितना गर्मी में देते थे। सो सेम इज वो बच्चे का है या हमारा है। इट इज लाइक अ इंटीमेट इंटरेक्शन, कॉन्वर्सेशन एट अ डीपर लेवल। और फिर इनर चाइल्ड वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं, वो सब। वो थेरेपीज तभी करनी पड़ती है जब हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया है। एंड एक बार ही वो बच्चे को बाहर ही देखने की आदत पड़ गई कि मेरा फ्रेंड क्या खा रहा है या कौन क्या कर रहा है, तो फिर वो वही खाएगा, या जो उसको टीवी क्या बता रहा है या जो भी। अब आप सडनली उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको वो ट्रस्ट नहीं करता है कि आपको ज्यादा पता है। उसको लगता है मम्मी को तो कुछ पता नहीं है, बिकॉज पहले आपने उसको ट्रस्ट नहीं किया जब वो कह रहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही at some point of time, and since I have grown up boys, so at some point time they develop their own discrimination, their own discretion, their own wisdom, their own, like you and I are developing. तो we also have to trust that कि ठीक है, मैं उसको अब जो मैं समझती हूँ अब मैं वो बताऊंगी, विदाउट गेटिंग इनटू द गिल्ट ट्रिपिंग कि ओहो मैंने नहीं किया। जब जागो तभी सवेरा है। नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई विल फॉलो दिस एंड ट्रस्ट दैट उसका भी जो बॉडी विजडम है या उसकी भी जो स्टोरी है, वो वन हैज टू गो थ्रू। Absolutely. I had thought that we will also delve into emotional healing and mental healing and approach a lot of those subjects. But of course, for paucity of time, we will for this episode stick to physical healing and of course meet again and discuss that. But as I look at it, you've shared so many pearls of wisdom. But the biggest takeaway for me is give your body time. When you talk about listening to your body, you need to give it time. You need to sit with yourself, minus the devices, of course, on a regular daily basis.
as often as your body needs. Someday it may only need 2 minutes of your time, and someday it may need longer. And Yeah. trust your own body, trust your own child, trust that the child's body is going to tell him or her what needs to be done or not. Same way, trust your own body. Developing that equation of trust with your body is very, very significant. And for that, you have taught us so many somatic practices that we do on a regular basis. Maybe in our next episode, we'll also do that, talk about the somatic practices, so that we are able to slowly tell our viewers how to build this trust with your body, how to listen Yeah. to your body in simple, small ways. And I'd also obviously like to invite our viewers to say if there's anything you want us to focus on for the next episode, please do let Yeah. us know. But before we sign off, CJ, I want you to sum up your equation with your health. You have given us everything. If you were to sum it up, what would you say? What's your equation to your body and Yeah. to health? Yeah. तो एक मेरी जो प्रैक्टिस है कि यू लुक एट योर बॉडी एंड आई एम सो फॉर्चुनेट आई बीन लिविंग इन बॉम्बे नाउ गोवा तो मेरी आधी बॉडी नेकेड ही रहती है so so you're visually seeing it, I'm touching it, and so I know I'm like intimate with my body. कैसा दिखता है, कहाँ पे कुछ कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ मतलब जो बॉडी ने खुद अभी नहीं बोला है बट Mm. आप ही को दिखाई दे रहा है एकदम ज्यादा हो जाएगी ड्राइनेस या कुछ तो फिर तो बॉडी अपने आप से इच करवाएगी वहां पे. बट जब भी जहाँ पे बॉडी ने नहीं बोला है बट आई एम इंस्पेक्टिंग एंड यू कैन डू दैट फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो. उसकी Beautiful. बॉडी ने अभी बोला नहीं है बट यू इंस्पेक्ट देयर बॉडी जैसे हम अपने इन्फेंट की करते थे. पूरी बॉडी एंड पूरी बॉडी को टच से पूरे सारे सेंसेस से आई से सुन के कि मेरी बॉडी क्या साउंड्स क्या कर रही है पेट में जैसे कि हाथ लगा के. तो आई डू दैट काइंड ऑफ फर्स्ट तो वो एक ट्यूनिंग इन है. दूसरा है कि मोमेंट द बॉडी इज सेइंग समथिंग बिकॉज आई मे हैव मिस्ड सम ऑफ दो सिम्टम्स. तो फिर मुझे जब बॉडी ने एकदम मतलब जोर से जब बोला है ना तो कोई सुनना भी है. चीज अब तो मुझे एक्शन लेना है यू नो Yeah. उससे पहले चाहे मैं एक्शन थोड़ा डिले भी कर देती पर जब उसने जोर से बोला है दैट मीन्स मैंने सुना नहीं कुछ. सो दीज आर द प्रैक्टिसेस आई डू बट लाइक वी सेड इशनीत मेरी जो स्टेज ऑफ लाइफ है ना मेरे पास टाइम है. मैं भी आपकी स्टेज से गुजरी हूँ जब मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता था बट अब मेरे पास टाइम है. सो दैट इज माई बिगेस्ट द लग्जरी और गिफ्ट and I use it well. So wonderful. टाइम या That is so टाइम तो शायद beautiful. बहुतों के पास है हाँ. बट आई यूज इट टू स्टे हेल्दी. या Very nice. नहीं, लेकिन हम in our next episode we will focus on somatic practices for everyone, या irrespective of the age group or how occupied or non-occupied we are in our lives. And we'd also focus on emotional and mental well-being and health, and see where we can take that conversation. So thank you. Uh, this has been my biggest learning with you over the last few years, uh, of connecting with our body, of listening to our body. And it has dramatically changed my equation with myself. And I hope यस through this conversation and through all that is happening on our channel, I hope the viewers are able to take that away. Thank you so much for your time. I will see you soon in the next episode. Thank you. यस. Ashneet, thank you very much, Ashneet. Thank you. Bless you.